Good evening, everyone. Welcome to Q&A session today. So myself, Dr. Danema Singhal from Masi Care Clinic. So I welcome you all. So you can start putting your questions in the chat box and I'll start taking them one by one. So till then, let me just talk to you simple things. Till then, you're writing your questions. So just write your questions and I'll answer them. I hope you have the access of the chat box. So let me say hello also who all are here. So hi Anchal, Amrita, Asna, Hiral. There is some iPhone also. The name is not written. Priyanka, Moza, Sonal, Srilata, Trupti, and I suppose more are joining very soon. So let us see who all are joining in. Okay. So first question is from Trupti. Does hand expression actually help in increasing breast milk? So let's understand how expression in any mode. So basically what happens that you produce breast milk, and if you don't take it out regularly, the milk supply will not increase because the demand is not there. And if the breast doesn't get emptied properly, the brain doesn't get the demand that, okay, the breast is getting emptied regularly. So that means milk is more required. Now, why do we work about hand expression? Because you can take out with pump or by direct feeding, but hand expression, what happens when you do a hand express, you express from different parts. So that way, due to your pressure on the breast from different globules which are there in the breast, the milk gets extracted from that regularly. That helps to empty the breast in a better way. So Trupti, yes, hand expression helps to empty the breast in a better way. And when the breast is emptied regularly, it helps to increase your breast milk also in a way that demand and supply, same thing. The breast gets emptied and it gives a stimulus to the brain to increase more milk. Okay. So if possible, please open your camera so that I can see you eye to eye, because it becomes very difficult for me to just answer on black screens. So if possible for you, then please just have your cameras open. Okay. So let's take the next question. Next question is from Amrita. My newborn is not latching properly. Why? So if your baby is introduced to bottles, or if your baby is given milk from by kaduri spoon or by paladai, then there might be the baby is finding it confusing on latching on the breast. Also, if the milk flow or milk supply is less, then this might happen, Amrita. So you need to just take it out. If you are still confused whether my milk supply is all good, but why is the baby not latching? Then that seems like a latching issue. You can reach out to the team and get a help from the latch expert. But if you feel the milk is not coming properly, then obviously you need to first work on your lactation also. Next is Priyanka Moza. Hi ma'am, actually my baby is 10 days old, but she is not latching. She has not latched till today, and now I have to pump, but that is not enough. So if the pumped milk is not enough, that means we need to work on your supply, and the baby is not latching from last 10 days. So that means either the issue is about the latching technique or the flow. So for flow, you can do oil massage and the warm compress. For improving the milk supply, random advice is to take Galactogox like Lactomagic powder and Morico tablets. But if you want a customized treatment plan for yourself, then reach out to the team and get a consultation done with the team. Next question is from, okay, iPhone is Minakshi. Okay, welcome Minakshi. Hi Asna. Okay, next question is from Asna. मेरी बेबी 1.5 महीने की है और अभी तक लैच नहीं कर पा रही है. पंप से एक दिन में 250 से 300 ml निकलता है. ये 1.5 महीने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए सफिशिएंट है या नहीं? तो मुझे जरा लास्ट वीक का वेट बताओ अस्ना कि क्या है, और लास्ट 1 वीक का वेट क्या है बेबी का, और अभी फॉर्मूला मिल्क पिछले हफ्ते और इस हफ्ते का पहले बताओ, तो मैं थोड़ा देखूं कि वेट गेन हमको कितना मिल रहा है और इसका वो क्या है, वो मुझे इसमें लिखो तो मैं उस पर आंसर करती हूँ अस्ना. Next question is from Monica Rana. Milk supply is low and also I have flat nipples. So अगर मिल्क सप्लाई आपका लो है तो आपको कुछ चीज़ों पे काम करना होगा. जैसे पहले आपको अपना वाटर इनटेक इम्प्रूव करना होगा.
फ्लो के लिए आपको मसाज और सिकाई करनी होगी ब्रेस्ट पे। गैलेक्टोकॉक्स मेडिसिन में आप लैक्टोमैजिक पाउडर और मोरिको टैबलेट्स यूज कर सकते हो। साथ में इसके आपको बच्चे का वेट चेक करना होगा, बच्चे को स्किन टू स्किन रखना होगा, और आपको मिल्क की डिमांड करने के लिए आपको रेगुलर बच्चे को या तो फीडिंग करानी है, या फिर आप हैंड एक्सप्रेस या पंप करके मिल्क को रेगुलर एक्सप्रेस करना है। फ्लैट निपल्स के लिए आप क्रॉस क्रेडल होल्ड यूज करो, उससे आपके लिए बेटर होगा। फ्लैट निपल्स, इन्वर्टेड निपल्स के लिए क्रॉस क्रेडल होल्ड बहुत अच्छा काम करता है। सोनाली, हाय। Hiral, my nipple is flat, so he can't latch properly. So also breast milk is also low, so my baby gets tired by latching. He is 15 days old. Uh, I need to use formula. Okay, so 15 days baby, if the nipple is flat, so first of all, don't worry with flat nipples or inverted nipples. You need to follow a proper latch technique. So the latch technique is what is recommended for this flat nipples or inverted nipples is a cross cradle hold. So in cross cradle hold, you hold the breast and support the breast, and then you bring the baby from the other side. So that way the baby is able to latch on the areola part, not on the nipple part, the black portion around the nipple. So that way the baby is able to latch properly. So don't worry about the flat nipples. You need to follow the right technique. And because you also need to give formula, so that means your supply is maybe low. So you need to work on your supply and also for the flow. So I've already answered about how to improve the flow and supply. So that you can do, or otherwise you can reach out to the team tomorrow and get your consultation done with the experts. Priyanka, but ma'am, what are latching techniques? How can I help my baby? So latching techniques are the positions and the holds which are recommended to latch the baby. So especially for mothers who are having flat nipples or inverted nipples, for them it is cross cradle hold. So this is what we recommend for this way. And if you feel that you have tried different techniques and the baby is not latching, then obviously it is better to seek support. So you can reach. We have a dedicated latch expert in the team. If your milk supply is good, then you can just ask directly for the latch expert. If you are facing low milk supply and also latching issues, then you reach out to the lactation expert. So just talk to the team tomorrow and get a consultation done for yourself. Otherwise, the general guidelines I have already answered about how to increase the milk supply. Sonali Patil. Ma'am, I take consultation for relactation. I have 20 to 30 ml milk supply. I have taken cabergoline tablets for stop milk before. Can I relactate completely? Yes. So you can relactate depending on how back you have taken this cabergoline for decreasing the milk supply. So accordingly, we need to first understand, and accordingly, we will start working. Since you're already having 20 to 30 ml now, start working and keep working on it, Sonali, so that the milk supply increases further. Asmita, low milk supply. Okay, so low milk supply, I have already answered about it. I'm repeating it again. So for low milk supply, if your baby is already coming on the breast, try to feed the baby frequently. If the baby is not coming on the breast, then create the demand by regular pumping. For other things, you need to increase your water intake. Second, you have to do this massage in the warm compress. And you have to take galactogogues like lactomagic powder and Morico tablets you can take. And along with that, skin to skin, and check the baby's weight regularly. Asna, wait on 22nd November. So just give me a minute. Let me just write and check. 22 November, 3.8. 28 November, 4.2. 3.8. तो देखो हमारा 400 ग्राम्स बड़ा है 1 वीक में, और बेबी का एज क्या है? असना, एक बार अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ, 1.5 कितना? 1.5 मंथ, 1.5 महीने। ठीक है, तो 1.5 मंथ के बेबी को हमें कितना वेट चाहिए 1 वीक में? 200 to 250 ग्राम्स। 150 to 200 ग्राम्स। अच्छा, ठीक है, और बड़ा हमारा कितना है? 400 ग्राम्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? हम बच्चे को ओवरफीड कर रहे हैं। देखो ना, अगर हमारा ज्यादा वेट आ रहा है, इसका मतलब हम ओवरफीड कर रहे हैं। तो फॉर्मूला मिल्क आप जो भी दे रहे हो पर डे, आप उसको क्या करो, उन फीडिंग सेशंस में 10 ml कम करना शुरू करो। ठीक है, तो टोटल में अगर बच्चा 6-7 फीड्स भी ले रहा है तो 60-70 ml कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, हम उसके बाद वेट ट्रैक करो। बाकी आई थिंक आप मेरे कंसल्टेशन में ऑलरेडी हो, करेक्ट? कल मुझे ऐसा कल लग मेरा रहा है। कल का है भी, मेरा अपॉइंटमेंट भी है। हाँ, गुड।
तो कल हमारा अपॉइंटमेंट भी है, तो वैसे हमको करना ये है कि आप जो कर रहे हो अभी सारा चीजें हम कल एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, मेडिसिन की डोजेस। लेकिन वेट बच्चे का तेजी से बढ़ रहा है तो फिर फॉर्मूला मिल्क हम और तेजी से कम करेंगे इसके अंदर इतना। ठीक है। लेकिन मैम ये बहुत ज्यादा रोने लगती है, फिर इसको जब हम्म। जितना दो ये पीती जाती है और तो चुप नहीं वहां हो पर हम सकती। क्या करेंगे ना, हम एकदम से बहुत नहीं कम करेंगे, 10-10 ml तुम हर फीडिंग में कम करो इसका, छोटे छोटे अमाउंट कम करो। अगर सपोज वो 5 फीड्स या 6 फीड्स भी लेती है रोज, अगर हमने 10-10 ml हर फीड में कम किया तो 24 आवर्स में 50-60 ml कम हो जाएगा उसका। और बाकी कल में एक बार हम डिस्कस करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसी चल रही है, पंप का आउटपुट क्या आ रहा है, उन सब चीजों को देख करके उसको और बेटरमेंट के लिए कैसे क्या कर सकते हैं उस पर वर्क करते हैं आसना। ठीक है। वेट हमको ओके ज्यादा थैंक मिल रहा यू। है तो हमें उसको ऑब्वियसली फॉर्मूला कम करना है इसके अंदर। ठीक ठीक है, है। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट है, अच्छा, my nipple is flat, my newborn is not latching properly, but I have more milk supply. Good that your milk supply is good. So for flat nipples you need to have a cross cradle hold the breast in U shape from below and bring the baby from the other side. So this way you will be able to latch the baby in a way that you are holding the breast and pressing the breast in a way that the areola will be pout out. So that way the baby will be able to latch on the areola. So don't worry about the flat nipples. You can definitely latch the baby. And the babies who are less than 1 month, please don't waste further time in latch, because as the babies are growing, they will understand the bottle and the bottle flow. Then that becomes more challenging to get the babies on the breast. So if your baby is less than 1 month and you're facing latching issues and you know that there is a latching issue, please don't waste time. Tomorrow itself, just reach out to the team, get a call with the latch expert if your milk supply is good. If you're facing low milk supply also, then the lactation expert will be able to guide you about low milk and the latching together. So reach out to the team tomorrow and get the help as soon as possible. सोनाली, क्या मिल्क बंद करने की टैबलेट की वजह से पहले जैसा मिल्क नहीं आ पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है सोनाली, उसका इफेक्ट तो कब का चला गया। वो कब लिया होगा आपने, और वो तो दो छोटी सी मेडिसिन होती हैं जो मिल्क कम करने के लिए दी जाती हैं, आपने जो ली थी पहले। बट अभी उसका इफेक्ट चला गया, उसको भूल जाओ। वो कोई हार्मोन भी नहीं है, इसलिए उसका इफेक्ट ऐसा भी नहीं कि लॉन्ग टर्म चलता है सोनाली। आप बस अब चीजों पे काम करना शुरू करो जिससे मिल्क सप्लाई इंप्रूव हो। सोनल, मेरा 4 मंथ्स पे है, 360 ml फॉर्मूला एक दिन का है, पीता है और फीडिंग करती है। मुझे नहीं मालूम मेरा कितना मिल्क आता है। उसको आपको जरूरत भी नहीं है कि जानने के लिए, आप बच्चे का वीकली वेट चेक करो। आपके बच्चे का 4 मंथ्स का है तो उसका वेट हमको 100 से 150 ग्राम पर वीक चाहिए। तो आप उसको ट्रैक करो, फॉर्मूला मिल्क को धीरे धीरे कम करते जाओ। ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने के लिए जो चीजें हैं जो भी मैंने बताई हैं उसके ऊपर वर्क करो। अगर आपको लगता है कि एक हफ्ते में आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो टीम को फौरन रीच आउट करके अपना फटाफट इशू को रिजॉल्व करो। बच्चा 4 मंथ्स का हो गया, अब हमारे पास और टाइम नहीं बचा है कि हम ऐसे इधर उधर टिप्स एंड ट्रिक्स पे वेस्ट करें इसको। अच्छा, can you suggest some latching techniques? So yes, latching techniques are like cross cradle hold. So let me tell you also about one latching technique. So first keep a pillow below you so that and you put the baby on the pillow and keep the baby towards you. And then suppose you have to feed from the left breast, then hold the breast in the U shape from below. And then bring the baby from the opposite hand. And when you are bringing the baby on the breast from this wrist, just extend the baby's head in a way the baby's head should be open up. And when you are bringing the baby on the chest, just make sure that the chin part should touch the breast first. Once the chin touches the breast, then with this finger, just stimulate the nipple on the upper lip of the baby. Once the baby opens a big mouth, then you push the baby inside. That way, the baby will latch properly. Once the baby is inside and starts sucking, then don't remove this hand. Keep it here itself, because if you remove the hand, then because of the weight of the breast, the baby will come again on the nipple. So this way, you will be able to latch the baby properly. I hope that helps, Akshay. आईफोन, मैम मेरा बेबी 2 मंथ्स का है, आई हैव फ्लैट इन्वर्टेड निप्पल, तो बेबी लैच नहीं कर पाया। वो बर्थ से ही फॉर्मूला मिल्क पर है और अभी मिल्क सप्लाई भी 0 है। सो अभी उसके लिए अब और इंतजार नहीं करेंगे। अगर आपका मिल्क सप्लाई इतना कम है, 2 महीने का बच्चा ऑलरेडी हो गया है, आपको मिल्क बिल्कुल नहीं आ रहा है, बच्चा बचपन से ही फॉर्मूला पे है, तो अभी उसका वेट अब नहीं करोगे कि अपने आप आ जाए। कैसे आएगा मिल्क अपने आप बेटा जी? अब फटाफट आप अपना एक्सपर्ट्स के साथ कॉल लगाओ, कि इस चीज का इंतजार कर रहे हो। कोई डाउट है तो मुझसे पूछो कि कॉल में क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे बताओ।
लेकिन ऐसे सिर्फ ढूंढने से अपने को काम नहीं चलेगा, अपने को फटाफट काम करना है। 2 महीने का बच्चा हमारा ऑलरेडी हो गया है इसके अंदर, ठीक है। तो फटाफट कल टीम का नंबर है आपके पास, गुड। तो कल टीम को पहुंचो, फटाफट अपना कॉल लगवाओ, फटाफट काम शुरू करो। 2 महीने का बच्चा हमारा ऑलरेडी हो गया है, अब हमारे पास टाइम वेस्ट करने को नहीं है इसके अंदर, ठीक है। स्माइल करो, ये गुड गुड। नेक्स्ट असना, और बेबी लैचिंग सिर्फ 2-3 मिनट ही करती है और उसके बाद शी स्टार्ट्स क्राइंग, व्हाट डज इट मीन? लो सप्लाई और इम्प्रॉपर लैचिंग टेक्निक्स। पंप से 250 से 300 ml निकलता है। असना यहाँ पे ना हमारा मेन इशू दिख रहा है कि हम फॉर्मूला मिल्क जो दे रहे हैं ना, उसकी वजह से उसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। तो पहले हम फॉर्मूला मिल्क थोड़ा थोड़ा कम करेंगे और लैचिंग पे इस पे और वर्क करेंगे। कल बाकी हमारा कॉल है ही, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं असना, और फिर इसके ऊपर वर्क करते हैं। आंचल, मैम मेरा 3 मंथ्स का बेबी है, उसको एक दिन में 120 ml फॉर्मूला देती हूँ, बट बेबी मिल्क टाइम पीते टाइम सो जाता है और 30 मिनट्स फीड के बाद भी 30 ml पी लेता है। बेबी का वेट 1.2 ग्राम्स केजी बढ़ा है लास्ट मंथ, हाउ टू डू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग? देखो, अगर वेट उसका 1.2 ग्राम्स बढ़ा है, 1.2 केजी बढ़ा है, तो अगेन ये वेट गेन 1 महीने के हिसाब से ज्यादा है, क्योंकि 200 ग्राम्स के हिसाब से हमको 800 से 900 ग्राम्स चाहिए 1 महीने के लिए। तो अगर वो भी आपका बच्चा 3 मंथ्स का है, तो 3 मंथ के बेबी को तो हमें 150 ग्राम्स पर वीक, तो मोटा मोटा 600 से 700 ग्राम्स पर मंथ चाहिए। तो वेट उस हिसाब से आपका एक बेबी का पिछले महीने में ज्यादा बढ़ा है, तो ये साफ दिखा रहा है कि अगर उसका, ऐसे इमेजिन करो कि अगर आपकी 2 रोटी की भूख है और अब आपको आपने ऑलरेडी 2.5 रोटी खाया है, तो आप चावल कैसे खाओगे? अगर आपको चावल खाना है तो आपको अपनी रोटी पहले कम करनी होगी, कि अगर आपकी 2 रोटी की भूख है तो आपको 1 या 1.5 रोटी खानी होगी, तभी आप चावल खा पाओगे। तो अगर हमको उसका उसका वेट गेन दिखा रहा है कि हम उसको फॉर्मूला से ऑलरेडी बहुत ज्यादा फुल कर देते हैं, तो अगर फॉर्मूला से वो ऑलरेडी फुल है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेगा अच्छे से। अगर ब्रेस्ट पे आ भी जाएगा तो थोड़ा पिएगा और सो जाएगा। तो ये अनइफेक्टिव फीडिंग कर रहा है वो ब्रेस्ट के ऊपर, जो 30 मिनट्स तक रुक रहा है। पैसिव लैचिंग कर रहा है, वो ठीक से लैच नहीं कर रहा है, वो सो जाता होगा ब्रेस्ट के ऊपर। तो इसलिए आपको पहले इसके ऊपर कॉन्शियस चीज पे काम करना है, आपको मिल्क का फ्लो इंप्रूव करना है। और इसके अंदर हम जो कई टेक्निक्स बताते हैं कि हम मिड बॉटल फीडिंग, पेस्ट बॉटल फीडिंग, कई चीजें टेक्निक्स बताते हैं इसके ऊपर, जिस तरह से आप काम करके अपने मिल्क सप्लाई पे वर्क करोगे और बच्चे का फॉर्मूला कम करके उसको ब्रेस्ट फीडिंग पे रिप्लेस करोगे इसके अंदर। आंचल, अगर बेबी को ब्रेस्ट फीड के बाद फॉर्मूला नहीं देने पर भी वो क्रैंकी नहीं होता, बट 1 आवर या 30 मिनट्स के बाद फिर मिल्क की डिमांड करता है, ऐसे में मैं पंप कैसे करूं? गुड गुड क्वेश्चन। तो अगर आपको ऐसा लग तो आप ऐसा करो, जैसे आपने सपोज एक तरफ से फीडिंग कराया, आप उधर से बस खाली पंप कर लो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि बेबी 1 घंटे 1.5 घंटे में मांगेगा, तो आप दूसरी तरफ से उसको फीड करा लोगे। तो इस तरह से आपका रेगुलरली ब्रेस्ट एम्प्टी होगा और आपका पंप भी होता जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो आंचल। Hiral, my doctor suggested silicone nipple to use. Is it good for baby? Now it depends. If your baby is not latching at all, then silicone nipple, like it is a nipple shield basically. It helps to get the baby on the breast. It is just a helpful medium for that. But you don't have to depend for it on long time. Once the baby starts feeding with the nipple shield, then you can remove the nipple shield later on. Acha, by pumping milk, how much milk is given to a 3-week born baby? So you have to see the weight gain. Or for a 3-week baby, we need 150 to 200 grams per week. So whatever amount of milk which you are giving to the child, check the weight on day 1 and day 7. If the weight gain is reaching 150 to 200 grams per week, that is the ideal milk which the baby requires. Priyanka, ma'am, I am trying this technique, but once the nipple is inside her mouth, she doesn't close the mouth for sucking and then cries. That means she is not habituated to the skin feel. So for that, what you do, first put your finger in the baby's mouth and let the baby suckle on the finger. Then you take her on the breast and let her suckle on the breast. So that way, because babies forget with the bottle feeding and all that, they forget the feel of the skin. So that way, Priyanka, work on this and get the issue resolved. Reshma, ma'am, how much ml of breast milk does 5-week-old drink? If I pump, I get only 60 ml. Is that enough? He wakes up every 1 hour and asks for feed. But at night, he sleeps 3 to 4 hours continuously. Is it normal? So if you're asking how much ml of 5-week-old drink, so you have to check the weight on day 1 and day 7. You keep giving whatever milk you are giving to the child and then check the weight on day 1 and day 7.
If the baby is increasing the weight 150 to 200 grams per week for a 5-week-old baby, then the amount of milk which you are giving to the child is perfect. If it is less, you have to increase the milk. If it is more, then you have to decrease the milk. नगमा, मैम मेरा बेबी 4 मंथ्स का है, अभी तक ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है और मिल्क सप्लाई लो है। तो नगमा, अगर 4 महीने का बच्चा ऑलरेडी हो गया है और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है, मिल्क भी कम है, तो आप अभी किस चीज का वेट कर रहे हो बेटा जी? आप टीम को कल ही रीच आउट करो। 4 महीने का बच्चा हमारा ऑलरेडी हो गया है, अभी टाइम नहीं बचा है कि हम ऐसा फ्री टिप्स और ट्रिक्स पे काम करें। कल टीम को रीच आउट करके अपना कॉल लगवाओ, डॉक्टर के साथ बात करो और अपना इशू को फटाफट रिजॉल्व करो। अच्छा, can I feed my baby while sleeping? So we recommend once your baby is completed 5 to 6 weeks, then you can start feeding the baby while sleeping. सोनाली मैम, मेरा बेबी 6 मंथ्स का हो गया है, कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री फीड के साथ मैं कैसे ब्रेस्ट मिल्क बढ़ा सकते हूँ? उसमें आपको करना ये है कि बच्चे का जितनी बार भी डिमांड होता है, उस समय आप बच्चे को पहले फीड कराओ, उसके बाद आप अपना पंप करो। और कॉम्प्लीमेंट्री फीड बच्चे को जो चल रहे हैं वो चलेंगे। अभी तो 6 मंथ्स का बेबी हुआ है, तो 2 ही बार तो कॉम्प्लीमेंट्री फीड चल रहे हैं, तो 2 बार के कॉम्प्लीमेंट्री फीड के बाद बाकी तो सब ब्रेस्ट फीडिंग ही है। Priyanka, can I also try nipple sheet? Because I don't know, Priyanka, about you. What is your history? If your baby is not at all latching on the breast, but your milk supply is good, then you can try for it. मलिहा, हाय मैम, मलिहा हियर। मैम मेरी बेबी 22 डेज की है और वो जब से हुई है तब से फॉर्मूला मिल्क पर है। मेरा फ्लैट और इन्वर्टेड निपल था, बट 10 ml की सिरिंज से मैं निकाल के पिलाती हूँ, तो थोड़ा निपल बना है और जब भी मैं ब्रेस्ट फीड करने जाती हूँ कोई हालत में भी नहीं लेती। थोड़ा 2-3 बार सक करती है, फिर छोड़ देती है और रोने लगती है। तो आप उसको ऐसा करो, ट्राई उसको हर बार कराओ, फिर वो जब छोड़ देती है उसके बाद आप ब्रेस्ट को पंप कर लो। पंप में हो सकता है शुरू में मिल्क ना आए, लेकिन ये डिमांड क्रिएट करेगा। साथ में आप, क्योंकि 22 दिन की बच्ची के लिए हम मिल्क आराम से बढ़ा सकते हैं, और बाकी आप उसको अभी फिलहाल फॉर्मूला दे रहे हो विच इज फाइन, लेकिन आप जैसा अभी आपको हर फीडिंग के बाद आपको पंप करना है, और बाकी जो अभी मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए मैंने चीजें बताई हैं आप उसको फॉलो करो। ज्यादा अच्छा है कि अभी बच्चा अगर छोटा है तो ये डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लोगे तो जल्दी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। बाकी अगर अपने आप करना चाहते हो तो कर लो, मैंने अभी चीजें बताई हैं, इनको फॉलो करो। Nagma says, okay, okay, ma'am, thank you. You are most welcome, my dear. Jyotsna. Hi, I'm Jyotsna. मेरा लो मिल्क है, 1.5 मंथ से ब्रेस्ट फीड नहीं किया, वो फॉर्मूला पर है। एवरी 1 आवर 40 ml 30 ml पीता है। तो ज्योत्सना, किस चीज का वेट कर रहे हो? 5.5 1.5 महीने का बेबी है आपका, लेकिन आपने ऊपर लिखा है 5.5 महीने का है। 5.5 महीने का है कि 1.5 मंथ का है? मैम 5 and 5। तो 5.5 मंथ का बेबी, अभी आप क्या वेट कर रहे हो मेरा बच्चा? लो मिल्क नहीं है मैम, और ब्रेस्ट। मुझे एक्चुअली अभी पता चला है, एक 15 दिन अच्छा, पहले तो मैं गाँव गई थी। और मैम एक ही ओके। चीज बताना है कि उसने 2.5 महीने, वो एनआईसीयू में था, और 2.5 महीने तक कैसे वैसे उसने मेरा पिया, और फिर लेफ्ट साइड पे वो 1 मंथ पी रहा था, और अभी 1.5 महीने से वो नहीं पी रहा है। यानी मेरे पास आता ही नहीं है वो। ज्योत्सना, आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, कल ही टीम को रीच आउट करो, अपना कंसल्टेशन लगवाओ डॉक्टर के साथ और फौरन अपना इसे स्टार्ट करो। 5.5 महीने का बच्चा हमारा ऑलरेडी हो गया, अब हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बचा और नहीं है। Yeah. मेरे यहाँ हॉस्पिटल में डिलीवर हुआ है ना, तो वहां हाँ, भी मैंने लैक्टेशन को आप यानी नहीं, आपको हमारी टीम का नंबर पता है? नहीं। आपको अभी इस कॉल, इस आज के वेबिनार के लिए लिंक कहाँ से मिला है? मुझे व्हाट्सएप पे आया था। हाँ, तो जिस व्हाट्सएप पे आया है ना, वहीं पर ही उस पे ही हाँ। बोलो कि मुझे कंसल्टेशन लेना है। और बाकी नहीं तो ओके। मैं आपको नंबर बता रही हूँ, ये नोट कर लो, और कल ही टीम को रीच आउट करो। हाँ, 1 मिनट। बता रहे हूँ। हाँ, बताइए। नोट करो, 93 93 690 690 37 37 490। 490। ठीक है, तो ओके। इसको मैम। हाँ, हाँ, मैम एक करीब ही मुझे 9:15, डाउट है। 1 सेकेंड, 9:15 9:30 तक वो आ जाती है लड़की, 5 5:30 हम्म, तक रहती है। आप उसको कॉल कर लो इस 2 बीच दौरान में, इसके अंदर नहीं तो व्हाट्सएप पे ओके। मैसेज डाल देना, वो कांटेक्ट कर लेगी आप। हाँ, और मैम हाँ, मुझे हाँ, एक बताना है कि मैंने कल ही इलेक्ट्रिशियन स्पेशलिस्ट जो हमारे हॉस्पिटल में है ना, उनसे बात किया था। तो हम्म। वो बोले कि अभी नहीं बढ़ सकता, तो आप उसको भूल जाओ, जो ऊपर का बोली है उसको खाना भूल चालू जाओ। करो। ऊपर का खाना वैसे ठीक है चालू करो, लेकिन ये भूल जाओ कि मिल्क बढ़ नहीं सकता। यूट्यूब पे जाना, अभी कॉल के बाद यूट्यूब पे जाना, वहां मेरा नाम डालना डॉक्टर तनिमा सिंघल। उसमें एक मॉमस्टर सीरीज का पूरा एक प्लेलिस्ट है, वहां पे हम्म। बहुत सारे तुम्हें सक्सेस स्टोरीज मिलेंगे।
किरण की सक्सेस स्टोरी है, जिसका बच्चा 2 साल का था जब वो मेरे पास आई थी मिल्क सप्लाई को बढ़ाने के लिए। 2 साल के बच्चे का मैं बढ़ा सकती हूँ, तो आपका बच्चा तो सिर्फ 5.5 महीने का है यार इसके अंदर। पर मैम 1.5 महीने से उसने मुंह में भी नहीं लिया फीडिंग। तो फिर जो मैं 2 साल, तुमको क्या लगता है 2 साल के बच्चे को वो फीडिंग कराती हुई बीच में रुकी थी? 2 साल के बच्चे का मिल्क सप्लाई 0 था, ऑब्वियस सी बात है ना कि उसने कितने लंबा टाइम, उसका तो 1.5 पौने 2 साल से उसने फीडिंग नहीं कराया था। ओके। ठीक है। ऐसा हो और मेरे सकता पास, है। हाँ जी बिल्कुल, और अभी मैंने तुमको बोला ना उस वाले पे जाना, वहां पे 8 महीने के बच्चे की रिलैक्टेशन स्टोरी, 10 मंथ्स की, हाँ। 1 साल की, बहुत सारी मिलेंगी बच्चा इसके ऊपर। ओके, नहीं मैंने ठीक है। सर्च नहीं किया ज्यादा हाँ इसलिए। कोई बात नहीं, अभी करना शुरू करो इसके ऊपर काम। कल फौरन टीम को रीच करके अपना ये लगवाओ और फटाफट आगे बढ़ो इसके ऊपर। ठीक है। ओके, पर पक्का मेरा हो जाएगा, हाँ इंक्रीज हो जी। जाएगा। हाँ जी। ओके। और बच्चा अभी नहीं ले रहा है, उसका कैसे करना है फिर? उसके वो लिए यार बहुत देखो हमको टेंशन है। देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो मिल्क बढ़े, उसके बाद हम हाँ। आपको टिप्स देंगे बच्चे को लैच कराने हाँ। के लिए। अगर मिल्क हाँ। सप्लाई इंप्रूव होगा तभी तो चांसेस भी है ना बच्चे के लैच हाँ, करने के। क्योंकि अब क्या हो मिल्क रहा ही था, नहीं वो है। लैक्स कर रहा था, पर जैसे ही मिल्क सप्लाई कम होता गया ना, तो वो छोड़ता गया फिर। ऑब्वियसली बच्चे को तो भूख लगा है, उसको तो दूध चाहिए। हाँ। उसको कोई कि आपसे अभी प्रॉब्लम भी थोड़े ना है उसके अंदर। वो 1 आवर को उठता है, और एग्जैक्टली 1 आवर को उठता है, और उसको 30-40 ml वो पी लेता है और सो जाता है फिर। हाँ तो ठीक है, उसके अपने ब्रेस्ट मिल्क पे काम करो, फिर एक बार थोड़ा मिल्क इंप्रूव होगा तो आपको लैचिंग के लिए भी टेक्निक्स बताएंगे हम लोग सब इसके अंदर। ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। नेक्स्ट इज अच्छा, थैंक्स फॉर योर क्लैरिफिकेशन मैम, यू आर मोस्ट वेलकम माय डियर। Priyanka Moza, thank you, ma'am. Most welcome. Shalu, my baby is 8 months old, giving express breast milk through pump. The quantity is 70 ml in a day only. My baby never latched before. I have two questions. First, how to increase milk supply as I want to give her milk for better immunity. Second, is having complementary food as well. If 70 ml in a day is enough for good health for her future. So let's first answer the first question. How to increase milk supply? Already I have answered that, but let me repeat it again. So since you are pumping, so you need to pump more frequently to increase the demand of the milk for your brain. And second thing is increase your water intake. Second, do oil massage and warm compress on the breast to improve the flow. Third, take galactogogues medicines like lactomagic powder and Morico tablets. Fourth, you need to have a lot of cuddling and playing with the baby. And fifth, you keep a weight track. So this way you will be able to understand what is the weight gain happening. And also for an 8-month baby, you need to give 3 meals and 1 snack. So all these solids you keep giving, and along with that, you also work on your milk supply. Now, because the baby is already 8 months old, I would prefer you to reach out to the team and get your consultation done, because that will help you to move into the process faster. Second is having complementary food as well. If 70 ml in a day is enough for good health for her future, should I continue pumping or stop it, as I am working mother and having difficulty in multiple pumping sessions? So 70 ml in a day is good for the immunity. That is perfect. But if you want to give her more of your breast milk, then obviously you have to increase your pumping sessions. But if you are talking about immunity, then 70 ml will also give you the immunity to the child. If you are a working mother and you are having difficulty in multiple pumping sessions, then at least keep doing than what you are doing. You can include the things which I just told you, so that it will give you a little more boost in your milk supply. Jyotsna, thanks. Great. So I'm not seeing any other new questions. I think you all don't have any more questions. Is it done? If you have any question, just let me know. So I just told the number to her. Let me just again. So this is the clinic's helpline number, which I just told to one girl, one of you. Just let me see the number again. इम्यूनिटी के लिए तो कितना भी मिल्क काफी है भाई, जितना आप दे सकते हो। वो वर्किंग मदर है, इसलिए मैंने उसको बोला कि जितना दे पा रही है वो कर ले। अदरवाइज तो आप लोग जो अभी, अगर आप पॉसिबल है आपके लिए वर्क करना, तो ज्यादा अच्छा है कि आप जितना चाहो, जितना मतलब ज्यादा से ज्यादा आप बच्चे को दे सकते हो उतना करो। क्योंकि फॉर्मूला मिल्क में इतना शुगर्स है ना। आप सोचो कि फॉर्मूला मिल्क किस चीज से मिलके बना है। ना वो गाय के दूध से बना है, ना वो भैंस के दूध से बना है। वो सिंथेटिक है, उस पे क्यों देना चाहते हैं? उसके अंदर इतनी चीनी पड़ी होती है, इतना प्रिजर्वेटिव्स पड़ा होता है, वो क्यों देना है हमको? तो अगर आप अपने ब्रेस्ट मिल्क पे काम करोगे तो ज्यादा अच्छा है ना वो इस चीज के ऊपर, है ना।
और बाकी इम्यूनिटी, वो फोन नंबर कौन मांग रहा था, मैं चैट बॉक्स में डाल दे रही हूँ, 9369037490। ये क्लिनिक का हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कल मॉर्निंग में बात कर लो और अपना कंसल्टेशन लगवा सकते हो। मलिहा मांग रहे थे, मलिहा मैंने उसमें दे दिया है चैट बॉक्स में। अस्मिता, मेरा बेबी रात में नींद में ब्रेस्ट फीड करता है बट दिन में टेढ़ा मुंह कराती है। टेढ़ा मुंह करती है। ओके, तो अगर बड़ी बच्ची हो गई है तो आपका बॉटल भी अगर पीती है तो बॉटल के फ्लो की वजह से वो इस तरह से करती होगी। रात में क्योंकि उसको पता नहीं चलता है कि ब्रेस्ट है कि बॉटल है, तो फीड कर लेती है। तो आपको दिन के टाइम पे उसको जैसे बॉटल आप पिला रहे हो अगर, तो कोशिश करो उसको एक बार ब्रेस्ट पे लेने की। नहीं लेती है तो आप फिलहाल बॉटल देने के बाद आप पंप कर लो और उस मिल्क को आप फॉर्मूला से रिप्लेस करते जाओ। बाकी आप निपल शील्ड वगैरह से ट्राई कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर टेक्निक्स के लिए आप टीम से रीच आउट करके लैचिंग एक्सपर्ट या लैक्टेशन एक्सपर्ट के साथ कॉल लगवा लो। क्योंकि अभी मुझे आपकी हिस्ट्री नहीं पता है तो मैं आपको एग्जैक्टली गाइड नहीं कर पाऊंगी कि क्या चीज़ें आपके लिए एग्जैक्टली वर्क करेंगी। उसके लिए मुझे आपकी थोड़ी पास्ट हिस्ट्री और प्रेजेंट हिस्ट्री जाननी होगी इसके लिए। Swati, ma'am, can you repeat the latching techniques for better breastfeeding? Okay, so what I prefer is have a pillow first. Keep your baby on the breast on the pillow, and then have the baby towards you, and then hold the breast in U shape from below. If you are feeding from the left breast, hold the baby from the other side, and once you are getting the baby towards the breast, just make sure that the baby's head is extended. The baby, and by this wrist movement, you can do that. Once the baby latches on the, like once the head is extended, so the baby's chin should be touching the breast first. Now, once the baby's like chin is touching to the breast, this finger, you just make sure that the nipple touches to the upper lip of the baby. When the baby opens a big mouth, then you latch the baby inside. This is the latching technique. भारती, मैम प्री मेच्योर डिलीवरी हुई है थी, बेबी 2.5 महीने के बाद आया है, अभी मिल्क सब 5-6 ml आता है और मुश्किल से, वो भी 2.5 महीने का बच्चा ऑलरेडी हो गया है भारती। अभी उसका वेट नहीं करो भाई, फौरन अभी मैंने नंबर दिया है टीम का, टीम को रीच आउट करो कल मॉर्निंग में और फौरन अपना जल्दी से जल्दी कंसल्टेशन लगवाओ। 2.5 महीने का बच्चा ऑलरेडी हो गया, अभी हम वेट नहीं कर सकते उसका। सोनल, मैम मेरा बच्चा लैच अच्छे से कर रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मिल्क सही से ले रहा है? वो 6 महीने का है, फॉर्मूला भी लेता है। बच्चे का वेट गेन कितना हो रहा है सोनाली, पहले ये बताओ। बच्चे का वेट 6 महीने के बच्चे का 50 ग्राम्स के आसपास होना चाहिए एक हफ्ते में। और फॉर्मूला मिल्क अगर ले रहा है तो अब सॉलिड्स भी स्टार्ट किया होगा। सॉलिड्स के लिए अगर किसी को गाइडेंस की जरूरत है तो हमारी टीम में डाइटिशियन है जो बच्चों के डाइट चार्ट्स बहुत अच्छे बनाती हैं। आपको जो नंबर मैंने यहाँ दिया है, आप बच्चे के डाइट चार्ट के लिए भी कल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बच्चे का डाइट चार्ट बनवाओगे तो उस तरह से आपके बच्चे का वेट गेन अच्छा होगा, बच्चे का फॉर्मूला भी कम होगा। तो सोनाली, अगर बच्चे का वेट 50 ग्राम्स पर वीक बढ़ रहा है तो फॉर्मूला धीरे धीरे कम करो, उसको सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करो, तो इस तरह से ठीक हो जाएगा। Shalu, thank you, ma'am. One more question. Why milk supply drops during period days? Is it normal? So what happens, Shalu, during periods, after delivery, the periods usually come heavy for some people and most of the people. So what happens when there is already a loss of blood? So your body tries to reserve all the nutrition. So for those 3-4 days, you might feel that low milk, but once the periods are gone, then you will see the milk supply all good. मोनिका राणा, मैम जैसे हम मेडिसिन स्टार्ट करेंगे फिर कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमारा मिल्क वैसे ही आएगा जैसे ड्यूरिंग मेडिसिन था, मींस कोई इफेक्ट तो नहीं होगा सप्लाई में। मोनिका, जब हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं हम लोग तो हम आपको एक मेंटेनेंस प्रोटोकॉल देते हैं जिसमें मेडिसिन को कैसे धीरे धीरे कम करना है वो हम आपको देते हैं। तो जब आप उसको फॉलो करते हुए मेडिसिन को कम करते हो तो मेडिसिन कम करने के बाद भी आपका मिल्क सप्लाई आराम से मेंटेन रहता है। तो आपको एक मेंटेनेंस प्रोटोकॉल दिया जाता है, आपको बस उसी तरह से फॉलो करते हुए मेडिसिन को कम करना होता है। Deepika, ma'am, this might be a silly question, but if weight gain is good around 300 grams per week for 2.5-month baby, does that mean I am overfeeding? Yes, 300 grams for a 2.5-month baby, yes, that means you are overfeeding. But if it is exclusive breastfeeding, then continue. But if you are giving formula, then reduce the formula. Bharti, okay, ma'am. Seema, my baby is 1 month. My baby 1 month hai, it's taking formula. She's also latching, but I am not sure if she's drinking milk or not. Then you check the baby's weight. For 1 month baby, we need 150 to 200 grams per week.
देवस्मिता, मैम बेबी जब ब्रेस्ट पे आता है तो काट देता है, क्या करूं लैच कराने के लिए? देवस्मिता, तुम्हारा बेबी बड़ा भी तो कितना है बाबा, 8-9 महीने का बच्चा कम से कम ब्रेस्ट पे आ रहा है, ये बहुत अच्छी। कहाँ हो देवस्मिता, सामने आओ, तुमसे तो मुझे बात करनी है। तुम तो मेरी पेशेंट हो, मुझे याद है, तुम मेरी पेशेंट हो ना देवस्मिता? अनम्यूट करो। कहीं बिजी हो, कॉल पे आ नहीं पाओगी? तुम्हारा तो एक बच्चा मेरे ख्याल से 9 महीने के आसपास का है ना देवस्मिता? यस मैम। हाँ, तो तुम्हारे बच्चे तो अच्छे से वेट मिल्क पे ब्रेस्ट पे आ रहा है ना, अच्छी बात है। कहाँ तो रीलैक्टेशन पे काम कर रहे थे हम लोग, काम। जी हाँ, तो अभी बच्चे ब्रेस्ट पे आ रहे हैं, गुड। जी मैम आ रहा है, अरे लेकिन काट वाह, देता है। वो काट, वो चलो ठीक कर लेंगे यार। तुम्हारा रीलैक्टेशन का था जहाँ मिल्क बिल्कुल नहीं था, तुम्हारा तो मिल्क बिल्कुल जीरो था देवस्मिता। जी मैम। करेक्ट ना? फिर हमने काम करना शुरू किया था, ओके, अभी अभी मिल्क आ 30 गया। ml के मैम, अभी 30 ml आ रहा है। अरे वाह, हर बार हो रहा है। जी मैम। अरे वाह, मजा आ गया। और बच्चा भी इलाज कर रहा है अभी? जी मैम, वो 8 होके आ रहा है, लेकिन काट देता है जोर से। हाँ, ऑब्वियसली बड़ा, अब तो कितना, 8 महीने का है ना, 8 या 9 महीने का, मैम कितना है? 10 महीने की हो गई है। अरे मतलब मुझे लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट वो ब्रेस्ट पे भी आ रही है यार। लेकिन 9 महीने के बच्चे ने कभी ब्रेस्ट फीडिंग लिया नहीं, उसको कभी ब्रेस्ट मिल्क मिला नहीं, अभी उसके लिए वो बड़ा नया एक्सपीरियंस है ना। तो तुम अगर वो काटेगी लेकिन, तो हमको मिल्क सप्लाई फिर दिक्कत आएगा उसके अंदर। तो शील्ड लगा करके ट्राई करो जिससे कि बच्चा काटे नहीं इसके अंदर देवस्मिता, ठीक है? ठीक है मैम। और कॉन्ग्रेचुलेशन देवस्मिता, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा मिल्क बिल्कुल नहीं था ना देवस्मिता, हमने जब स्टार्ट मैम किया वो था? पहले से डिलीवरी के बाद भी वो कभी भी ब्रेस्ट पे नहीं आता था। अभी अब तो मिल्क आ रहा है, इसलिए आ रहा है। ब्रेस्ट पे नाइस, करेक्ट। सो और मैम। मदर्स देखो, अगर 8-9 महीने के बच्चे का मिल्क बिल्कुल जो नहीं आ रहा था, देवस्मिता का अभी आने लग गया है, 30 ml हर पंप में आ रहा है, और बच्चा उसका लैच भी कर रहा है। तो तुम लोग पूछते रहते हो ना, करेगा करेगा करेगा, तो देखो देवस्मिता का बच्चा लैच कर रहा है, लेकिन वो बड़ा है, 9 महीने का, 9-10 महीने का हो गया है, इसलिए काट रहा है, वही देवस्मिता बता रही है। वो मैं बताऊंगी देवस्मिता, कल करना है एक काम देवस्मिता, तुम्हारी तो लैचिंग की कॉल भी है, उसके साथ लैच एक्सपर्ट के साथ बात करो। वो तुम्हारा वो ये इशू के लिए बताएगी कि काटने के लिए कैसे बताएगी वो, कि कैसे बचाओ कि ठीक काटे है नहीं मैम। इसके अंदर, ठीक है? ठीक कल है ही बात मैम। करना उससे, लैच एक्सपर्ट से करके कॉल करो। और बाकी हमारी कॉल कब की ड्यू है देवस्मिता? 5 दिसंबर को हुआ था, 5 पांच दिसंबर को। दिसंबर को है, ठीक है, चलो उस पर बात करते हैं। बाकी कल ही लैचिंग की कॉल अपनी लगवाओ इसके अंदर, ठीक है ठीक मैम। है? एंड वेरी हैप्पी, नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वाति मैम, how much should be the ideal weight gain for 1.5 month baby? So 1.5 month baby, we need 150 to 200 grams per week. Swati. So let me tell you, so till 3 months, we need 150 to 200 grams per week. From 3 to 4.5 months, we need 100 to 150 grams per week. From 4.5 months to 6 months, we need around 100 grams per week. And thereafter, 50 grams per week. Okay. Okay, so the questions are done. I don't see any new questions. बट आज तो मुझे मजा आ गया देवस्मिता का सुन के, दिस इज गुड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गर्ल्स, so take care everyone, I don't see new questions are here, so that's all for today, and we'll see again on next Friday, same 9 p.m. Bye bye everyone, good night.